تو خوشحال کر اپنی مخلوق پر رحم کر رحم کر اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم اہل سنت الحمدللہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں، محافل سجاتے ہیں، میلاد کراتے ہیں۔ بالخصوص جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں، محافل سجاتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ذکر ہوتا ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی جاتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، اور اس کے بعد نعت رسول، اور نعت رسول کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فضائل و کمالات بیان کیے جاتے ہیں۔ مخالفین کی طرف سے بدعت کے فتوے لگتے ہیں، آج میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ مخالفین میں سے بالخصوص علماء اہل حدیث اور علماء دیوبند جو ان معاملات کو بدعت کہتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ علماء اہل حدیث کو چاہیے کہ اپنے اسلاف کی کتب کو پڑھیں، انہوں نے میلاد کو بدعت نہیں کہا بلکہ باعث اجر و ثواب کہا ہے، اور علماء دیوبند کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے اسلاف کی کتب کو دیکھیں، انہوں نے اس کو باعث اجر و ثواب کہا ہے، بدعت نہیں کہا۔ اگر یہ بدعت نہیں ہے جیسا کہ آپ کے اسلاف بھی کہتے ہیں تو آپ کیوں اس طرح کے فتوے لگاتے ہیں؟ آپ کو چاہیے کہ پہلے آپ اپنے اسلاف کی کتب کو دیکھیں، اگر یہ بدعت ہے تو پھر آپ کے اسلاف بھی بدعتی ہوں گے، وہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مناتے ہیں، پھر آپ بھی بدعتی لوگوں کی پیروی کرنے والے ہوں گے۔ اب آئیے آپ کو دکھاتے ہیں علماء دیوبند کی عبارات میلاد کے متعلق۔ مفتی رشید احمد لدھیانوی بہت بڑے یہ مفتی ہیں، عالم ہیں، ان کی کتاب ہے احسن الفتاوی، جلد 1 صفحہ نمبر 347، HM سعید کمپنی کراچی سے چھپی۔ کہتے ہیں جب ابو لہب جیسے بدبخت کافر کے لیے میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہو گئی تو جو کوئی امتی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی کرے اور حسب وسعت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں خرچ کرے تو کیوں کر اعلیٰ مراتب حاصل نہ کرے گا؟ مفتی رشید احمد لدھیانوی صاحب لکھتے ہیں کیوں کر اعلیٰ مراتب حاصل نہ کرے گا۔ علماء دیوبند کو چاہیے کہ اپنے اسلاف کو پڑھیں، وہ کیا لکھ رہے ہیں اور آپ کس طرح کے فتوے لگاتے ہیں اہل سنت پر۔ دوسرے چوٹی کے عالم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا محمد قاسم نانوتوی کے شیخ ہیں، پیر ہیں، اور مولانا رشید احمد گنگوئی کے پیر ہیں، اور اشرف علی تھانوی صاحب کے پیر ہیں، اور میر علی شاہ کے بھی پیر ہیں، یعنی میر علی شاہ ان کے خلیفہ ہیں، یعنی اہل سنت بھی ان کو مانتے ہیں اور دیوبند بھی ان کو مانتے ہیں۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ ان کی کتاب شمائع میں امدادیہ صفحہ نمبر 47 پہ لکھتے ہیں مولد شریف تمام اہل حرمین کرتے ہیں۔ اب یہ 1317 کو ان کی وفات ہے، 1317 حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حرمین شریف میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ہوتا ہے، یہ اس وقت کہہ رہے ہیں۔ اسی قدر ہمارے واسطے حجت کافی ہے، اتنا کافی ہے کہ حرمین میں میلاد ہو رہا ہے، یعنی مکہ مدینے میں میلاد ہو رہا ہے، کہتے ہیں ہمارے اتنا ہی کافی ہے کیونکہ شروع سے چلتا آ رہا ہے، بدعت نہیں ہے۔ اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیسے مذموم ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ہو رہا ہے، آپ کا ذکر خیر ہو رہا ہے، تو یہ مذموم کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کس طرح کے فتوے لگاتے ہیں؟ آپ غور کریں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کیا کہتے ہیں؟ البتہ جو زیادتیاں لوگوں نے اختراع کی ہیں نہ چاہیے، ہاں جو زیادتیاں کرتے نہ چاہیے، یعنی غیر شرعی کام نہ کریں، ہم بھی اس کے مخالف ہیں کہ میلاد کے نام پر ڈھول باجے نہیں ہونے چاہیے، کوئی بھی سنی عالم اس کا فتویٰ نہیں دیتا، سب اس کو منع کرتے ہیں، بالکل ہم متفق ہیں ان باتوں سے۔ اور قیام کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، ہاں مجھ کو ایک یعنی قیام کے بارے میں کھڑے ہو کے درود و سلام کے بارے میں مخالفت نہیں کرتا، ہاں
मुझ को एक कैफियत क़याम में हासिल होती है, लेकिन मैं खड़े होके जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ता हूं तो मुझको एक कैफियत हासिल होती है। ये हाजी इमदादुल्लाह महाजर की किताब शिमाय में इमदादिया सफ़ा नंबर 47, मदनी कुतुब खाना मुल्तान, और ये छपी 1405 हिजरी को। आगे इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं उनकी दूसरी इसी किताब में सफ़ा नंबर 50 पे कि हमारे उलमा मौलिद शरीफ में बहुत तनाज़ा करते हैं, ताम उलमा जवाज की तरफ भी गए हैं। जब सूरत जवाज की मौजूद है फिर क्यों ऐसा तशद्दुद करते हैं। देखें क्या लिखते हैं। ये दारुल उलूम देवबंद के बानी कासिम अली नानोतवी साहब के ये पीर हैं, यानी देवबंद के जितने भी उलमा उनके ये पीर हैं। तो अब वो क्या कह रहे हैं देखें। कहते हैं हमारे उलमा मौलिद शरीफ में बहुत तनाज़ा करते हैं, ताम उलमा जवाज की तरफ भी गए हैं। जब सूरत जवाज की मौजूद है फिर क्यों ऐसा तशद्दुद करते हैं। और हमारे वास्ते इत्बा हरमैन काफी है कि हरमैन शरीफैन मक्के मदीने में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मिलाद हो रहा, हमारे इतना काफी है। अलबत्ता वक्त क़याम के एतकाद तवल्लुद का न करना चाहिए। अगर एहतमाम तशरीफ आवरी का किया जाए तो मुज़ाहिका नहीं, कि खड़े होकर अगर ये नजरिया रखा जाए कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं मजलिस में तो कोई मुज़ाहिका नहीं, क्योंकि आलम खल्क़े मुक़य्यद बज़मा मकान है, लेकिन आलम आमर दोनों से पाक है। बस कदम रंजा फरमाना ज़ाते बाबरकात का बईद नहीं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएं तो ये भी कोई बईद नहीं जो खड़े होकर दुरूद सलाम पढ़ते हैं। ये अकीदा बयान कर रहे हैं हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, जो मौलाना अशरफ अली थानवी साहब के भी पीर हैं। तो उलमा देवबंद को ख्याल करना चाहिए कोई फतवा लगाते हुए। आगे इनकी किताब है हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की की फैसला हफ्त मसाला, सफ़ा नंबर 7, इदारा इस्लामिया कमालिया से ये किताब छपी है। वो लिखते हैं कि रहा ये अकीदा के मजलिस मौलूद में हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रौनक अफरोज होते हैं, तो इस अकीदा को कुफ्र और शिर्क कहना हद से बढ़ना है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम महफिल मिलाद में तशरीफ लाते हैं, इसको कुफ्र और शिर्क कहना यह हद से बढ़ना है। ये बात अकलन व नकलन मुमकिन है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ला सकते हैं, बल्कि बाज मकामात पर वाक़ई हो भी जाती है। अगर कोई ये शुबा करे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कैसे इल्म हुआ कि यहाँ मजलिस हो रही है और आप तशरीफ लाएं, आप कई जगह कैसे तशरीफ फरमा हुए, तो ये शुबा बहुत कमजोर शुबा है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म और रूहानियत की वसअत की आगे, यही आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इल्म और वसअत इससे आगे है। तुम जो शुबा कर रहे हो, जो सही रिवायात से और अहले कश्फ के मुशाहिदे से साबित है, ये अदना सी बात है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएं तो ला सकते हैं, इसमें शुबा नहीं करना चाहिए। देखें तो अब जो लोग महफिल मिलाद को बिदअत मज़मूमा और खिलाफ शरअ कहते हैं, उन्हें कम अज कम अपने शेख और मुर्शिद का ही लिहाज करते हुए इस रवैया से गुरेज करना चाहिए। ये अल्लामा डॉक्टर ताहिर कादरी साहब कहते हैं कि उन्हें इस रवैये से गुरेज करना चाहिए। ये उनकी किताब है मीलादुन नबी। जिस भाई को मिलाद की पूरी डिटेल देखनी हो तो ये बेहतरीन किताब है। अल्लामा डॉक्टर ताहिर कादरी साहब, उन्होंने तमाम उलमा की आरा को यह जमा किया है और हवालों के साथ। क्या कहते हैं डॉक्टर ताहिर कादरी साहब? कहते हैं कि जो लोग महफिल मिलाद को बिदअत मज़मूमा और खिलाफ शरअ कहते हैं, उन्हें कम अज कम अपने शेख और मुर्शिद का ही लिहाज करते हुए इस रवैया से गुरेज करना चाहिए। अब आइए आगे हम देखते हैं उलमाए देवबंद का मुत्तफिका फैसला कि वो क्या कहते हैं। हरमैन शरीफैन के उलमा ने उलमा देवबंद से इख्तिलाफी व एतकादी नियत की 26 सवालात किए। तो मौलाना खलील अहमद सारनपुरी ने उन सवालात के जवाबात दिए और इस बारे में किताब लिखी अल मुहन्नद अल मुफन्नद, और इसकी तस्दीक की 24 उलमा ने कि जो इसमें लिखा हुआ है वो हमारा मसलक और हमारा मजहब और हमारा अकीदा है। यानी कि 24 उलमा ने ये तस्दीक की है कि ये हमारा मसलक है और ये हमारा अकीदा है। उसमें जो 26 सवालात थे उसमें से 21वां सवाल मीलाद के बारे में था,
उलमा अरब ने कहा कि क्या तुम इसके कायल हो कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत का जिक्र शरन कभी है, कभी सही बुरा है, हराम है, या कुछ और तुम्हारा ये अकीदा है? तो उलमा देवबंद ने मुत्तफिक का जवाब क्या दिया? कहते हैं हाशा, कि हम तो क्या कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं कह सकता कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत शरीफ का जिक्र, बल्कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नालैन और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सवारी के गधे के पेशाब के तज़किरे को भी कभी बिदअत सय्या या हराम का ये कैसे हो सकता है? वो जुमला हालात जिन्हें रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जरा सी भी निस्बत है, इनका जिक्र हमारे नजदीक निहायत पसंदीदा और आला दर्जा का मुस्ताहब है। खास जिक्र विलादत शरीफ हो कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत का जिक्र हमारे लिए बड़ा करीब है, हम इसको सवाब का काम जानते हैं। या आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बोलो बराज, निश्त बर्खास्त और बेदारी व ख्वाब का तज़किरा, जैसा कि हमारे रिसाले बराहीन कातिया में मुतअद्दिद जगह बिसराहत मज़कूर है। इससे आगे अल्लामा डॉक्टर ताहिर कादिर साहब कहते हैं, इस सारे लिटरेचर की मौजूदगी में इस्लामी तारीख से लाइल्मी और जहालत एक बहुत बड़ा अलमिया है। इंग्लिस्तान, अमेरिका, यूरोप और अरब दुनिया में नाम निहाद दानिश्वर और मुकर्रिन अपनी तकरीरों के जरिए नई नस्ल को ये कहकर गुमराह कर रहे हैं कि इन इकाद मिलाद की कोई हैसियत नहीं है, ये एक बिदअत है जिसका वजूद सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान में है, इसके अलावा और कहीं नहीं। अगर इनकी ये बात मान ली जाए तो इस्लामी तारीख की तमाम नाम और इल्मी शख्सियात जिनका हवाला हम ऊपर दे चुके हैं बिदअती करार पाती हैं। इसमें उनके मुत्तबईन को भी बिदअती का लक़ब मिलेगा जो उनके मानने वाले हैं। जो अल्लामा इब्न तैमिया को मानने वाले हैं वो भी फिर बिदअती कहलाएंगे, और हाजी इमदादुल्लाह मक्की को मानने वाले उनके जो मुरीद है कासिम नानोती साहब जो उनके मुरीद उलमा देवबंद वो भी फिर बिदअती कहलाएंगे। फिर पूरी इस्लामी तारीख में बिदअत के फतवे से कोई नहीं बचेगा और पूरे इस्लाम पर बिदअत की इस इल्जाम तराशी की जद से कोई महफूज नहीं होगा। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया डॉक्टर ताहिर कादिर साहब की किताब मिलादुन नबी से और मुकम्मल हवाला जात के साथ, ये जिम्मेदारी के साथ कि ये उलमाए अहले हदीस के जो चोटी के उलमा उन्होंने ये लिखा है और उलमा देवबंद की चोटी के उलमा उन्होंने ये लिखा है कि जायज है, सवाब का काम है। और हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह ने जो लिखा है, जिसको तमाम उलमाए देवबंद मानते हैं, उस पर गौर करना चाहिए। और उम्मीद करता हूं कि आइंदा इन रवियों से गुरेज किया जाएगा कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाते हैं, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हैं, आप उन पर बिदअत के फतवे लगा के क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को किस तरह मुंह दिखाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।